راجہ محسن اجاز صاحب، آپ بتائیں کہ خبر کیا ہے اندر کی؟ دیکھیں، آج ایک طویل لمبا اجلاس چلا، یہ تقریباً 11:40 پہ شروع ہوا اور نیئرلی کوئی 3:45 کے قریب یہ اجلاس ختم ہوا. اور آج کے اجلاس کی جو سب سے بڑی جو وہاں سے جو ڈیولپمنٹ پتہ چلی ہے ذرائع کے مطابق، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ان کے پاس 14 دن کا وقت ہے کہ اب وہ شو کاز نوٹس کا جواب دیں. ہمارے ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ یہ جو اب انہیں جو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے یہ 3-2 کے تناسب سے ہوا ہے. 3 یعنی جو اس جوڈیشل کونسل کے ممبرز تھے انہوں نے یہ نوٹس جاری کرنے کے حق میں، جبکہ 2 نے اس کی مخالفت کی. اور مزید تفصیلات تو بھی آ رہی ہیں کہ وہ کیوں مخالفت کی گئی، میں بھی کوئی ٹیکنیکل نوعیت کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، دوسری بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال اب شو کاز نوٹس جاری ہو گیا ہے اور 14 دن کا وقت ہے اور اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے پاس آپشن کیا ہیں. انہیں یا تو وہ دیکھیں، ایک تو وہ جواب دے سکتے ہیں کہ 14 دن کے اندر وہ اپنا جواب دیں جس طرح انہیں کہا گیا. دوسرا آپشن وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح اس نوٹس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو چیلنج کر دیں. لیکن اس میں یہ بھی چیزیں ہیں کہ کچھ جو پروسیس ایسے ہیں کہ جس طرح کی ریکارڈنگ سے پہلے اسناد ملک صاحب نے بھی بتایا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تھی تو انہیں ان پرسن بلا کے بھی پوچھا گیا تھا، 2 دفعہ بلایا گیا، اس کے بعد شو کاز کیا گیا جو انہوں نے سپریم کورٹ میں پھر چیلنج کیا. تو یہ پروسیس اتنی تیزی سے ایک دم اس کو یعنی جمپ کیوں کیا گیا، یہ بھی تفصیلات آنا باقی ہیں. لیکن جو باقی آپ نے پوچھا کہ جوڈیشل کونسل میں مزید کیا ہوا، مجھے اس بارے میں بالکل نہیں پتا. شاید ملک صاحب یا ناصر صاحب کو پتا ہوگا کہ جو ایک ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں جیسے سردار طارق مسعود کے خلاف بھی تھی شکایت، اس پہ کیا ہوا یا دیگر جو شکایات تھی. ناصر صاحب، کمپلینٹ کیا تھی جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان کے خلاف؟ شکریہ صاحب. جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف 10 قسم کے کمپلینٹس ہیں، ڈفرینٹ کمپلینٹس ہیں. اس میں پراپرٹیز کے بھی ایشوز ہیں کہ انہوں نے سستی پراپرٹیز لی لاہور میں اور پرائز پراپرٹیز تھی، ان کی پرائز مارکیٹ ویلیو کچھ اور تھی. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بیٹی کو فنڈز ٹرانسفر کیے باہر کے جو کسی اور نے پیسے دیے، یہ بھی اس طرح کی بھی ایلیگیشنز ہیں. پھر دوسری بات ہے ان کی، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ آڈیو لیکس آئی جی بالکل، جس میں چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کی مطلب کچھ کنورسیشن لیک ہوئی تھی، یہ بھی ایک ایلیگیشنز ہے. اس کے علاوہ ان کے جو سندھ ہائی کورٹ سندھ بار کونسل نے بھی ایک ریفرنس فائل کیا تھا جس میں انہوں نے یہ ایلیگیشن لگایا تھا کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے خلاف جو اسپیشل کورٹ بنا تھا جنہوں نے ان کو سزا دی تھی، اس کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا انلیگل، اور پھر ان کی ایلیویشن ہو گئی تھی سپریم کورٹ میں اور ان کے خلاف پھر اپیل آئی تھی. بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کی. بیسیکلی جو ہے ان کے یہ اچھے خاصے جو ہیں ان کے خلاف ایلیگیشن ہے. اب یہ دیکھیں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اب یہ اس کو فائٹ کیسے کریں گے، کیونکہ اب انہوں نے اگر نوٹس جاری کر دیا ہے تو وہ اس کا جواب دیں گے. اب یوزلی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک موقع ملتا تھا کہ ان پرسن بلا کے ان سے پوچھا جاتا تھا اور وہ پریلیمنری میں عموماً ڈسمس بھی ہو جاتی ہے. زیادہ تر ایسا ہوا ہے. اور کیونکہ بہت سارے اپلیکیشنز آتی ہیں ججز کے خلاف، بہت سارے لٹیگنٹس بھی فائل کر دیتے ہیں کہ جی اگر کوئی لٹیگنٹ کو کسی کو شکایت ہے کہ جی میرا کیس سنا نہیں گیا تو وہ بھی فائل کر دیتی ہیں. تو اب دیکھیں آگے اس کا جو ہے یہ سیریس ہے. مطلب اگر ان کو شو کاز نوٹس ہوا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جی ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ کچھ یہ ایک سٹیپ آگے گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل. ابھی کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جی فی الحال یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ڈیسائیڈڈ ٹو پروسیڈ فردر میں تو یہ ہے کہ ان کو سمن کرے، نوٹس کرے کہ جی یہ آپ کے ان کو بتایا جائے کہ جی یہ کمپلین ہے، اس کے بعد شو کر. اب شو کا ایک آگے گئے ہیں. اب جسٹس مظاہر جو ہے وہ بڑا واضح سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران پہ مسٹرسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور جسٹس سردار طارق کے حوالے سے ان کے بڑے ریزرویشن ہیں، کنسرن ہے، مسٹرسٹ ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو اگر یہ شو کاز جاری ہوا کنفرم جو ہے وہ محسن کر رہے ہیں، انہیں کی خبر ہے اور 3-2 سے، تو اس سے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 3 لوگ جو ہیں وہ
आगे भी जाएंगे। अब एक ही हल है, जैसे मज़ाहिर के पास अगर शोकॉज जारी हुआ है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करें, और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करके ये भी कुछ लोग कहते हैं कि जी जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिस तरह शौकत सिद्दीकी साहब का मामला था तो 2 हियरिंग हुई थी तो केस ही खत्म हो गया था, उनके खिलाफ ओपिनियन दे दी गई थी। जिससे मज़ाहिर के हवाले से क्या होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज अभी तक पाकिस्तान की तारीख में कोई एक जज भी फारिग नहीं हुआ। ये शोकॉज अगर जारी होता है तो दूसरा शोकॉज जारी होगा सुप्रीम कोर्ट, पहले जस्टिस काजी फैसल को हुआ और अब जस्टिस मज़ाहिर को हुआ। अब जस्टिस मज़ाहिर जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं, बहुत से लोग लाहौर के वकील जो उनके मुखालिफ है इंडिपेंडेंट ग्रुप, वो कहते हैं जी रिजाइन, मेरा ख्याल है कि रिजाइन के चांसेस कोई चीज बताएंगे, आपने असेस किया होगा उनकी प्रॉपर्टीज के मामलात हैं या उनकी ऑडियो टेप्स हैं, ये वो जाहिर सी बात है सुप्रीम उनको सिर्फ जो भी उनके सामने सबूत आई चीजें उनको देखकर तो उनको घर नहीं भेजा जा सकता, उनका काउंटर चेक तो जरूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि कितने मजबूत वो हैं इनके खिलाफ सबूत? देखिए, एक जो उनका रिलायंस लग रहा है बाजार वो है जस्टिस काजी फैसल केस में कि जी टैक्स उमर अता बंदियाल जब चीफ जस्टिस उन्होंने कहा जी कि अगर टैक्स का इशू है तो टैक्स ऑफिसर देखे, FBI इंक्वायरी करे। अब ये है देखना है कि क्या FB जो है उनका जी एसेट बियॉन्ड मीन्स आता है या जो उन्होंने प्रॉपर्टीज शो अपने रिटर्न में दिए उनमें कोई मसला है, तो पहले क्या FBI ने उनको नोटिस दिया, उस पर कुछ हुआ, इंक्वायरी हुई, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है FBR का, क्योंकि बार बार जैसे नासिर साहब भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि ये बात हो रही थी कि टैक्स इशू में भी जज को नोटिस नहीं, और फिर टैक्स अथॉरिटीज जो है पहले वो अपनी इंक्वायरी करें, कोई बहुत बड़ी कुछ चीज़ें नजर आती हैं तो फिर आगे जो है वो मामला जाना चाहिए। तो ये अब थोड़ी बातें हैं जो मेरा ख्याल है कि अब जैसे मज़ाहिर जो है, क्योंकि लेकिन उन पे एलिगेशन मुख्तलिफ किस्म के हैं, मुख्तलिफ नेचर के हैं, कुछ ऑडियोज भी हैं और कुछ ये भी है कि जी उनके फ्रंट मैन का भी जिक्र है कि वो राजा फ्रंट मैन था, और ये तो उनके खिलाफ बहुत है। असल मसला ये है कि मुख्तदर हलकों के वो बहुत करीब दौरे कोर्ट में थे, इस वक्त ओपन सीक्रेट है मुख्तदर हलकों के वो करीब नहीं है। इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमा ग्रुप जो उनके करीब था अब वो उनके मुखालिफ है। मीन प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ जितनी कार्रवाई है एहसन बून ग्रुप जो आसमा ग्रुप है वही कर रहा है। तो ये वो डिसएडवांटेजेस हैं जो माजी में जो लोग उनके साथ थे इस दफ़ा उनके खिलाफ हैं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मैं ये कहता हूँ कि अब भी सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए जब तक मुख्तदर हलकों की सपोर्ट नहीं हो, बार की नहीं होगी तो मुश्किल है। तो ये दोनों सपोर्ट तो अभी तक बज़ाहिर लग रहा है कि मज़ाहिर साहब के खिलाफ है। प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान ग्रुप अभी तक खामोश है, मे भी उनको सपोर्ट कर जाए। हामिद खान जाती तौर पर नहीं पसंद। साकिब साहब ये तो हो गई ना सियासी बातें। अब आपने एक सवाल किया कि वो इल्ज़ामात की हकीकत क्या है। एक जहाँ तक अभी नासिर साहब जैसे बता रहे थे तो फीस, उनकी बेटी की फीस का मामला, उनकी जो बेटी को फीस की अदायगी की गई वो हमारे ज़राए के मुताबिक वो उनके पर्सनल बैंक अकाउंट से वो फीस ट्रांसफ़र होती रही। अच्छा, इसी तरह जो कुछ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो मैंने रेफरेंस मियां दाऊद साहब वाला देखा था उसमें जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई और फरोख्त की गई वो रजिस्टर्ड सेल डीड के ज़रिए खरीदी गई, रजिस्टर्ड सेल डीड के ज़रिए बेची गई और नियरली कोई 80 लाख रुपए वो मुख्तलिफ जो 2 प्रॉपर्टीज़ थी वो बेच के उनके जो टैक्स बनता था खरीदो फरोख्त का वो भी अदा किया गया। इसके अलावा जो एक और चीज़ है इसी रेफरेंस से मुतल्लिका वो ये कि ये गुजरांवाला कैंट में एक प्लॉट था उनका, इसी तरह एक उनका लाहौर में एक घर था। ये फिर बाद में उन्होंने प्लॉट पे भी तामीर की ये पुराना प्लॉट था जो उन्हें कहीं अलॉट हुआ था, अलॉटमेंट हुई थी, कोई खरीद नहीं थी। इसी तरह एक घर और फिर गुजरांवाला कैंट जो प्लॉट उन्होंने बाद में घर बनाया। ये 2 प्रॉपर्टीज बेच के, यानी 2 घर बेच के उन्होंने एक घर खरीदा। और इसी तरह जो फीस का जहाँ तक मामला है वो ये है। बाकी जो बात हो गई कि भून साहब, तारड़ साहब, बार काउंसिल, ये तो सियासी बातें हो गई ना। अब जहाँ तक बात है लिए किसी जगह पे अभी बाकायदा अगर तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी पिटीशन तो इसका मतलब है कि ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि उन्होंने जो मतलब उनके पास मटेरियल है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। ये भी हमें देखना पड़ेगा। और मुझे लगा भी था कि शायद वो तैयारी में थे कि वो उनके खिलाफ कोई कैंपेन है या जो भी चीजें चल रही, वो सुना था बंदियाल साहब जब जा रहे थे कोई नाराज भी थे उनसे, कोई बंदियाल साहब से ये गिला उनके दोस्तों का है। नकवी साहब को मुझे नहीं पता, वो कहते हैं कि जी बंदियाल साहब को चाहिए ये था कि उनको पता है सरदार तारिक साहब और काजी साहब के साथ उनके टर्म्स नहीं है, तो ये कहते हैं कि नकवी साहब को ये उन्होंने बंदियाल साहब ने मामला सरदार तारिक साहब से भेज दिया कि माजी में बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं। अब ये है कि ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स, मैं हर चीज
नवाज शरीफ से लेके कोई भी सुप्रीम कोर्ट में उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट मैंने 12-14 साल में देखा है, वो होता है। आप मुझे बताएं किस केस में सिंपल आप कहें कि वो कानून को देख के ही फैसला होता है? और सदीकी का केस हर कंसिडरेशन ये मैं वो सारी चीजें बार का प्रेशर है। इस तरह तो देखे ना, जस्टिस सरदार तारिक साहब और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब खत लिख के, खुद लिख के अपना माइंड अपना ओपिनियन दे चुके हैं। इसी तरह जस्टिस मुलाहिर नकवी साहब उनके हवाले से खत लिख के बता चुके हैं। तो क्या इखलाकी तौर पे अब इस तरह के जो बंदा ऑलरेडी अपना ओपिनियन दे चुका है, जुडिशियल काउंसिल में बैठे वो 2 मेंबर्स, क्या उनके हवाले से कोई अपनी कार्रवाई इस तरह मतलब कर सकते थे? या अगर वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई और नोटिस को चैलेंज कर देते सुप्रीम कोर्ट में, क्या जस्टिस काजी फैज ईसा उस बेंच में बैठ सकेंगे? क्या जस्टिस सरदार तारिक बेंच में बैठ सकेंगे? लेकिन मोहसिन, कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही ऐसी है, वो ऐसी है। लेकिन आपको याद होगा जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया था तो उन्होंने 2 जजेस पर एतराज कर दिया था, एक जस्टिस इजाज साहब पे और एक जस्टिस सरदार तारिक साहब। वो उन्होंने बस वजूहात भी दी थी कि क्या वजूहात है। नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में अगर वो करेंगे बायस पे ये नहीं उठते, उन पे इल्जाम होता है। वो वजूहात मेलिस पे नहीं थे ना, वो वजूहात इसलिए थी कि यार मेरी सीनियरिटी बाद इन्हें फायदा होगा, जस्टिस बन जाएंगे। नहीं, देखें बायस जो इशू है ना, अब कानून ये है, मसला क्या है, वो ये भी सेकंड करेंगे। जवाद खाजा साहब की जजमेंट है, वो कहते हैं जज खुद डिसाइड करेगा कि मैं बायस हूँ या नहीं। अब ये कानून है, मैं ये नहीं कहता ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब तलकात वो नहीं है और उनको एक है मज़ाहिर नकवी साहब को मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा और मेरे साथ इंसाफ सिर्फ जस्टिस एजाज एहसन और जस्टिस अमीर भट्टी या ये दूसरे जजेस करेंगे। अब मसला ये है, कौन सी बात है कि जो अपने जजेस हैं वो इंसाफ करेंगे? देखिए अब मसला क्या है, मंसूर अली शाह साहब से भी उनके तल्लुकात ठीक नहीं होंगे मेरी इत्तला के मुताबिक, उस तरह नहीं है, क्योंकि जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो मंसूर अली शाह पे नए जजेस को बिठा दें। अच्छा, अब मसला ये है, नहीं कंपोजिशन, अब वही मैं कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप ताकि मोटी बात है, सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप है। बंदियाल साहब, जो ग्रुप बंदियाल साहब के साथ था उस पे तो नकवी साहब को इत्मीनान हो, दूसरे ग्रुप में मे भी 1-2 जजेस उसके अलावा उनको मिसट्रस्ट है, वो जो आजाद मिसट्रस्ट है। जुडिशियल पॉलिटिक्स के काजी साहब उस पूरे फेज से गुजरे हैं, वो फेयरली चीजें चलाएं। नहीं तो आज आप खुद बड़ा कोर्ट्स को लेकिन शो का जारी करना मेरे ख्याल है ये सवाल आपसे भी करना चाहता हूँ। हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान साहब, सिद्दीक जान साहब ने से कुछ देर पहले एक ट्वीट की है, जब नोटिस शो कॉज इशू हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की एक और ख्वाहिश पूरी कर देगी। आप क्योंकि नवाज शरीफ के केसेस आजकल बड़े कवर भी कर रहे हैं हाई कोर्ट में, पहले भी आपने देखा, तो क्या ये उस तरह का भी कोई मामला हो सकता है? नहीं, ख्वाहिश तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन उनका एतराज बहरहाल बड़े अरसे से रहा है। उनका तो हर जज पे एतराज रहा है जो उनके खिलाफ फैसला मज़ाहिर अली अकबर नकवी की बात कर रहा हूं। नहीं, मज़ाहिर नकवी साहब नहीं, शुरू से ये इनको नहीं पता मज़ाहिर नकवी साहब का मज़ाहिर नकवी साहब के हक में एफिडेविट के ये सादिक और अमीन है, आजम तारड़ ने दी है। सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन में आजम तारड़ का रोल है। राना सनाउल्लाह ने सपोर्ट किया पार्लिमानी कमेटी में मज़ाहिर नकवी साहब को। वजह क्या है? आजम तारड़ जो एक मैं कहता हूँ कि बहुत ही करीब है, उनकी फैमिली वाला तलक उनका रहा है माजी में। अब मसला ये है कि उनका और एहसन भूम साहब के तलकात नहीं ठीक है, नून लीग का कोई से नहीं है। नून लीग तो अपने असल में बात कर रहा हूँ जुडिशरी में से होती है वकीलों की, बार की, और बार जो है मैं बता रहा हूँ जो माजी में जो वकील थे जो उनके हक में एफिडेविट देते रहे वो मुखालिफ हैं, वो कहते हैं जी इनको प्रोसिक्यूट करें। अब वो ये कहते हैं कि जी वो नून लीग की वजह से है या कोई और वजह है। मेरे ख्याल में इतना तलक माजी में, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट में जब वो जज थे तो वो एंटी नून जज के नॉन में जाने जाते थे, लेकिन फिर भी आजम तारड़ साहब ने जाती तलकात की वजह से उनको सपोर्ट की। तो अब क्या वो जब वो प्ली लेंगे उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या पाकिस्तान बार काउंसिल वकला की सबसे बड़ी एक तंजीम जिसे कहा जाता है, बड़ा हैरान कुन है ये मामला भी कि कैसे जब एक जज के खिलाफ शिकायत या रेफरेंस आता है जैसे तो वो उनका जो आप कह लें कि रवैया या रिएक्शन कुछ और होता है। इसी तरह जब एक और जज के खिलाफ जैसे जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत आई या जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ आई
تو وہ پورے طریقے سے جج کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہاں پر شکایت آئی تو ایک تو وہ خود کمپلیننٹ بن گئے, انہوں نے کہا جی کارروائی اس میں بھی میرے خیال میں وجہ بہت پالیٹکس ہی ہے. پھر پالیٹکس ہے نا, پھر قانون یا یہاں پہ وہ مسئلہ سیاست ہے. سیاست میں اس وقت نواز شریف اوپر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر یہاں پہ ہر چیز نواز شریف بار گروپ جو ہے نا, آپ زبیری سپورٹ کر رہے ہیں آپ بندیال گروپ کو. مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کی وکیلوں کے بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری نہیں, وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, سپریم کورٹ کے صدر ہیں. سپریم کورٹ بار جو حامد خان گروپ ہے, پروفیشنل گروپ ہے. اب اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ جونیئر ہیں حامد خان صاحب. اب اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ اگر انکلائن ان کا گروپ دیکھیں, جو حامد خان پروفیشنل گروپ پرو پی ٹی آئی وہ ادھر ہے ان ججز کے ساتھ, منیب صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ. اس کے ساتھ جو آسما گروپ ہے, انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, جو پرو نون ہے, وہ ہے دوسری سائڈ پہ. یہ بڑی اوپن سیکرٹ باتیں ہیں, اس کو صرف نون لیگ کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے. جو وکیلوں کی اپنی سیاست ہے وہ ججز کے ساتھ بھی منسلک ہے.